پیارے بچوں، یہ ہمارے ایک بھائی ہے، دوست ہے، آپ سے ہم سب کے مہمان ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں وہ آپ سے دین کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، تو آپ غور سے سننا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو محمد کلیم صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نہایت محترم پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و جملہ سامعین، نہایت پیار اور ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پیارے بچوں، بات شروع کروں گا ان الفاظ سے جب لوح پر اللہ نے قلم کو حکم دیا، مراد تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھنے تھیں، تو لوح پر جو پہلے حروف لکھے گئے وہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچہ، بسم اللہ کے 19 حروف ہیں اور جہنم میں ایذا دینے والے فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ بسم اللہ کا تعارف کراتا ہوں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ عذاب دینے والے فرشتوں کا میں مقابلہ کروں تو بچوں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فرشتوں کے سامنے ڈھال کا کام کرے گی۔ اور سب سے پہلے بسم اللہ آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور جب نازل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے میری امت اگر بسم اللہ کا ورد کرتی رہے گی تو عذاب جہنم سے محفوظ رہے گی۔ اس کے بعد اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا، اے سلیمان، سلیمان کی بادشاہی بہت بڑی بادشاہی تھی، اے سلیمان تیری بادشاہی مکمل ہو گئی بسم اللہ کے ساتھ۔ پھر اسے اٹھا لیا گیا۔ اور بچوں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب نازل ہوئی تو آپ سب جانتے ہیں، اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو تپتی اور دکھتی آگ میں پھینکنا چاہا۔ آپ نے بھی بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس آگ میں کود پڑے، جو سب جانتے ہیں وہ گل گلزار ہو گئی۔ اور بات آتی ہے نبی آخر الزمان پر، بسم اللہ کا تعارف انہوں نے ایسا کیا کہ میرے امتی قیامت کے دن بسم اللہ کا ورد کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مین نقطہ یہ ہے کہ کوئی چاہتا ہے اگر اللہ سے محبت تو اس رحمان اور رحیم کو دہراتا رہے گا۔ یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، کسی مقصد اور خاص مقصد کے تحت آپ یہاں آتے ہیں، آپ گھر سے روانہ ہو تو بسم اللہ کا ورد شروع کر دیا کریں سارے راہ میں۔ آج کل میری خلافت میں ڈیوٹی ہے، میں تو بچوں کو یہ کہتا ہوں، چاہے پیپر ہے کچھ بھی ہے، دوائی مریض کھاتا ہے تو بسم اللہ کر کے اسے وہ پلائیں، کھلائیں دوائی۔ اس کے علاوہ بچوں، اسلامی تاریخ کے واقعات ایسے ہیں، بعض ایسے واقعات ہیں جن کو سن کر زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے،
जिंदगी का नक्शा बदल जाता है। ऐसा ही एक वाकया मैंने अपने किबला वालिद मोहतरम हजरत सैयद मुजफ्फर शाह रहमतुल्लाह अलैह से ये बात सुनी और उनके जबान की ये तासीर थी कि वो अल्फाज मेरे दिल में खुप गए। तो 4 मिनट आपके लेता हूं, लेकिन मुद्दा समझाना चाहता हूं कि अल्लाह ने अपनी मखलूक को पैदा किया, सिर्फ मुसलमानों को नहीं। बात करूंगा, मैं यूट्यूब चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से मुखातब हूं और हाई स्कूल सरी की विसादत से पूरी दुनिया वालों को, मुसलमानों नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों को भी मुखातिब करके ये वाकया बयान करता हूं कि हमारा खुदा कैसा है, आपका खुदा, आपने जिनको खुदा बनाया हुआ है वो क्या है, और मुसलमान तो मुसलमान कि मेरा रब काफिर से कितनी मोहब्बत करता है। ये बात सुनकर आपको खूब समझ आएगी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह थे, सखी कहलाते थे, मेहमान नवाज थे, कभी बगैर मेहमान के खाना नहीं खाया। एक दिन मेहमान नहीं, खाना नहीं खा रहे, अहले खाना इसरार फरमाते हैं कि खाना तैयार है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मुझे इंतजार है किसी मेहमान का। इतने में 85 साल एक बूढ़ा गली में से गुजरते हुए जब देखा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसके जमाने का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये उस दौर की बात है। तो जब मेहमान को बुलाया, दस्तरखान पे बिठाया, हाथ धुलवाया और फिर फरमाया पढ़ ए बंदे कलमा पढ़ और रिज़्क शुरू कर। वो काफिर था, उसने कहा मैं कलमे वाला नहीं, मैं तो खुदा को न जानता हूं न पूजता हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जा फिर दफा हो जा, फिर तुझे मैं खाना भी नहीं खिलाऊंगा। मेहमान जाता है, जिब्राइल आता है और फरमाता है इब्राहिम, अल्लाह सलाम फरमाता है और फरमाता है ए इब्राहिम, मेरा बंदा जिसको 85 साल से मैं खाना 3 वक्त का दे रहा हूं, अगर वो काफिर है, मेरा वो दुश्मन है, मैं जानूं और वो जाने, मेरा तो बंदा है, मैंने उसको पैदा किया, मेरे एक बंदे को नवाला रोटी तूने नहीं दी। चंद ही लम्हे गुजरे थे, वो आदमी थोड़ा दूर गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर की बात में भी हिकमत है। जाते हैं दोबारा, उसको बुलाते हैं, अब जी जी करके बुलाते हैं, फरमाते हैं आ बाबा जी कुछ ना खा लेकिन खाना तो खा। खुशकिस्मत मेहमान ने सवाल किया कि ये चंद लम्हों में तेरी कैफियत बदल गई, पहले तो मुझे दफा किया, पहले तो मुझे किक किया और अब मुझे पिक करते हो, अब मुझे जी जी करते हो, माजरा तो सुना। तो पैगंबर होता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा देख बंदे, तेरा मेरा मालिक वो है, तेरा मेरा राज़िक वो है, तुझे भी वो रिज़्क देता है, मुझे भी देता है। अभी मैंने तेरे साथ बदअखलाकी की और तेरे मालिक ने मुझे झड़का, मुझे डांटा और जिब्राइल ने आकर मुझे कहा लिहाजा मुझे माफी भी दे दे और खाना खिला दे। मेहमान खुशकिस्मत ने कहा ऐसा तो हमारा रब है, रब क्या चाहता है। इब्राहिम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। उसने कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान भी हो गया। मुसलमान होकर उसने खाना खाया। और आखिर में बात इस पे ख़त्म करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी तारीफ अखलाक की कुरान में है नक्श, और उन्होंने फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, तुम में से बेहतर वो है जो मुत्तकी है। तो बच्चों खुश अखलाक बन जाओ। इस वाक़े को सुनकर किसी गैर मुस्लिम से भी बद अखलाकी न करो। जिस तरह इंडिया वाले
हमारे मुसलमान कैदियों के साथ और उनके साथ वहां जुल्म और बर्बरियत का बाजार उन्होंने गर्म किया है, लेकिन उसके मुकाबले में मुसलमान का दिल सीरत नबी की तकलीद करते हुए मुझे तो ये सबक मिला है। मैं तो इंसान से मोहब्बत करता हूँ, इंसानों से मोहब्बत है और कलीम कहलाता हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि ए खुदा मुझे बातें करने की तौफीक दे दे और बस मैं तेरे और तेरे महबूब की बातें लोगों के साथ करता रहूँ। मैं जुमला असातिज़ा साहिबान और आप सब बच्चों का मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया और इंशाल्लाह फिर जिंदगी मिली, फिर मिल आएंगे, बातें करेंगे, उसकी बातें करेंगे जिसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, वास्ते सिर्फ इबादत के। हम तो मुलाजमत करते हैं, आप पढ़ते हैं, जो कुछ करते हैं, 5 वक्त की अगर आप नमाज पढ़ते हैं, उसकी ताबीदारी करते हैं, तुम्हारा ये सब कुछ अल्लाह ताला इबादत में शुमार करेगा। और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए मौलाना साहब दुआ करके अपनी बात ख़त्म करते हैं। मौलाना साहब दुआ कर फ़लस्तीन के आमीन 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 लो